Now, students, today's second derivation. In the first derivation, we have seen that relation between electric field and electric potential, and also we have seen what is the potential gradient. Potential gradient means what? dV by dx. That we have seen. So that we have done in the first part. Now in the second part, we have to derive another derivation for finding out the electric potential energy of system of 2-point charges in the absence of electric field. इसका मतलब क्या है कि जब भी 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, ओके, एंड दिस 2 पॉइंट चार्जेस अगर हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना जनरेट होता है, ये हमको डिराइव करना है. तो इसके लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि 2 चार्जेस आर देयर, Q1 एंड Q2. इनिशियली दे आर एट इन्फिनिटी. हमको ऐसा कंसिडर करना है कि इनिशियल पॉइंट पे दोनों के दोनों चार्ज Q1 Q2 कहाँ पर रखा हुआ है? इन्फिनिट डिस्टेंस पे, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. और उसके बाद पहला चार्ज Q1 लाके हम पॉइंट A पे रख रहे हैं, और A पे रखने के बाद दूसरा चार्ज Q2 B पे रख रहे हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है. इन दिस फिगर इट हैज़ बीन शोन दैट A एंड B आर द 2 पॉइंट्स. एट A Q1 is placed, at B Q2 is placed. They are at a distance of R. So to find out the expression for electric potential energy of the system of 2 charges, ये जो दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा, तो ये हमको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट हम क्या कंसिडर करेंगे? A एंड B दोनों के दोनों कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है. ओके, जब A एंड B इन्फिनिटी पर है, Q1 एंड Q2 इन्फिनिटी पर है, A एंड B 2 पॉइंट्स हैं. A एंड B आर द 2 पॉइंट्स, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R. तो Q1 एंड Q2 को कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. तो हम क्या कर रहे हैं? पहले Q1 को लेकर आके A पे रख रहे हैं. जैसे ही A पे Q1 को रख दिया, तो जब Q1 आएगा, Q1 के ऊपर कोई फील्ड एप्लीकेबल नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जब Q1 आ रहा है तब A के पास कोई भी फील्ड नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था. सो Q1 will not experience any type of force on it. Why it will not experience? Because at initial level A was not having any charge, B was also not having any charge. Both the points we are considering, they were empty. When we are bringing Q1, on the Q1 there is no force acting. Now because of Q1, what will happen? There will be an electric field generated. There will be potential generated. And when we bring the Q2 charge, okay, so when we are bringing the Q2 charge at B, what Q2 has to do? It has to experience a force of Q1. Okay, why it has to experience? Because Q1 is present already now. When I am bringing Q2 here on B, this Q2 has to experience a force of Q1. So because of that, these 2 charges will have combined effect of electric potential. So that we have to find out now. So basic concept क्या है इसके अंदर? इस डेरिवेशन में हमको क्या समझना है? पहले हमको ये समझना है कि A एंड B 2 पॉइंट्स हैं, उसका डिस्टेंस कितना है? R है इन दोनों के बीच का. Q1 और Q2 जो चार्ज है वो कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है. सो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? Q1 and Q2 are placed at infinity, and from the infinity first we are bringing Q1, and when we bring Q1 and put it on A, Q1 will have the field, electric field on this. So it will have the electric field, it will have the electric potential. So first we are bringing the electric field to this. So first what will happen? Q1 is brought from infinity to the point A. No work is done on Q1. Why no work is done? Because there is no electric field on it to oppose this charge. So consider another point B at a distance A. So electric potential at B due to Q1 is given by V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R. ये जो पोटेंशियल है किस वजह से है? Q1 की वजह से है. Q1 कहाँ पे रखा हुआ है? पॉइंट A पे रखा हुआ है. ये पोटेंशियल किसके ऊपर गिर रहा है? B के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर गिर रहा है. तो B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा?
V1 इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r, मगर ये चार्ज कौन सा है, Q1 रहेगा। तो पोटेंशियल, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये फर्स्ट डेरिवेशन हमने जो स्टार्ट किया था उसके बेसिस पे V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4πε0Q1/r। क्लियर हो गया। ये क्या होगा, V1 किस वजह से, पॉइंट ए के ऊपर जो Q1 चार्ज रखा हुआ है उस वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0Q1/r। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट द चार्ज Q2 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट बी। जब मैं Q2 लेकर आ रहा हूं पॉइंट बी पे, देखो Q2 जब लाके इधर रख रहा हूं पॉइंट बी पर, तो इस Q2 को क्या करना पड़ेगा, A1 के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट है इधर, ये इसका फील्ड जनरेट करेगा। जब Q2 ला रहा हूँ इस फील्ड में, एक यहाँ पर, तब ये Q2 को क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सो व्हेन द चार्ज Q2 इज मूव्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 अपोजेस इट, Q1 क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा, क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है। तो जब भी Q2 आ जाएगा Q1 के ऊपर, तो Q2 के ऊपर क्या रहेगा, अपोजिट फोर्स रहेगा। हेंस वर्क हैज़ टू बी डन। तो Q2 को क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो Q2 है इन्फिनिटी से ला के इधर रख रहे हैं, तो इस Q2 को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट Q1 फोर्स के ऊपर। Q1 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा। सो दिस पॉइंट B विल डू द वर्क एंड दैट वर्क इज गिवन बाय व्हाट, V1 into Q2, बिकॉज पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, W/Q। सिंस द पोटेंशियल इज W/Q, सो W इज इक्वल टू व्हाट, V into Q। V इज द पोटेंशियल, Q इज द चार्ज, सो पोटेंशियल V1 है इंटू Q2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, ऑलरेडी V1 हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब ये V1 का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 21 में। तो जैसे हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 1/4πε0Q1/r इंटू Q2। सो दिस इज द वर्क डन फॉर द सेकेंड चार्ज Q2। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द चार्जेस एज पोटेंशियल एनर्जी। सो इतना जो वर्क डन है दैट विल रिमेन स्टोर्ड in the charges as potential energy. So the potential energy will become given by what, 1/4πε0Q1 Q2/r, where r is what, distance between the charges. So ये जो दिस डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस, पहले केस में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट, सिंगल पॉइंट चार्ज है तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0Q/r आता है। मगर जब दो चार्ज रह रहे हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ चार्ज में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0Q1 Q2/r। तो ये डेरिवेशन किसके लिए हुआ, ये डेरिवेशन हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा कि दो चार्जेस हैं, दोनों के दोनों किस में रखे हुए हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, Q1 और Q2 इन दोनों के अलावा कोई दूसरा चार्ज इधर नहीं है, दूसरा फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है। जब ये दूसरा फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है तो Q1 क्या करेगा, इनिशियली पोटेंशियल जनरेट करेगा B के ऊपर। तो और एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको, इस डेरिवेशन को। तो हमें डिराइव करना है सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, एंड इन द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। In the absence of electric field means for these two charges no any other charges are present in it. If third charge is present then third charge will have the electric field on it, but that is not the case here. So इसके लिए हमने क्या कंसिडर किया है, A और B दो पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं, वो कितने डिस्टेंस पर हैं, डिस्टेंस R पर है। Q1 और Q2 कहाँ पर है इनिशियली दे आर एट इन्फिनिटी। तो हम कंसिडर कर रहे हैं Q1 और Q2 कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो क्या होगा, फर्स्ट द चार्ज Q1 इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A। तो पहले हम क्या कंसिडर करेंगे कि चार्ज Q1 कहाँ से लेकर आए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A। जब Q1 को हम पॉइंट A पे ला रहे हैं
तो Q1 के ऊपर कुछ वर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वर्क? बिकॉज कोई चार्ज है ही नहीं उधर ए पॉइंट पे। सो Q1 चार्ज के ऊपर नो वर्क इज डन बिकॉज देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड टू अपोज दिस चार्ज इनिशियली। अब क्या होगा? कंसिडर अनदर पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ए पॉइंट से हम दूसरा पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं बी। उस बी के ऊपर पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 विल बी गिवन बाय व्हाट? V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बाय R। ये किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा? ये फार्मूला किसका है? इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ये फार्मूला। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अभी पहला हमने चार्ज लेकर आ गए, ए के ऊपर रख दिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट वी विल ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी एंड वी विल ट्राई टू कीप इट इन बी। जब Q2 को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से तो पॉइंट बी की तरफ, तो Q2 चार्ज के जब मूव होगा उसको क्या करना पड़ेगा? अपोजिशन काउंटर करना पड़ेगा। किस वजह से? Q1 चार्ज की वजह से। तो Q1 चार्ज क्या करेगा? Q2 को अपोज करेगा। सो Q2 को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा? क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा? Q1 को अपोज करना है। सो Q2 विल डू द वर्क। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B विल बिकम व्हाट? W इज इक्वल टू V1 इंटू Q2। V1 क्या दिया है? इट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। Q2 क्या है? सेकेंड चार्ज। जो सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से हम ला रहे हैं तो Q2 को वर्क करना पड़ेगा। कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा? V1 इंटू Q2। क्लियर हो गया? सो ये V1 W इज इक्वल टू V1 इंटू Q2। V इंटू Q क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने पास फार्मूला है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। सो वर्क इज इक्वल टू V इंटू Q। सो इस बेसिस पे हमने ये फार्मूला बना लिया, W इज इक्वल टू V1 इंटू Q2। सो W इज इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है? इक्वेशन 1 में ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, 1/4πε0 Q1 बाय R। अब ये 1/4πε0 Q1 बाय R ये किसकी जगह में पुट करेंगे? V1 की जगह में पुट कर दिया। When we put the value of 1/4πε0 Q1 by R into Q2, so what it indicates? It is the total work done by the system of charges. Which charges? Q1 and Q2. They are separated by what distance? Distance R. So the total work done is stored in the charges as potential energy. So ये जो work done है ये store रहेगा किसके अंदर? इन charges के अंदर। In what form? It will be stored in the form of potential energy. So that potential energy will be given by what? PE is equal to 1/4πε0 into Q1 Q2 by R. So what it indicates? Where R is the what? Distance between the charges. R represent क्या कर रहा है? Distance between the charges. And when it is representing distance between the charges, तो ये derivation हुआ potential energy due to a system of two charges Q1 and Q2 when they are placed in the absence of electric field. क्लियर हो गया? तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड डेरिवेशन आज का। तो ये पूरा का दोनों के दोनों पेजेस में PDF में भेज रहा हूँ, तो दोनों के दोनों तुमको आज लिख लेना है। सो अभी फर्स्ट डेरिवेशन हमने क्या किया था? फर्स्ट डेरिवेशन हमने किया था E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। ओके, इससे हमें क्या मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों का रिलेशन कैसा है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर है। तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? dV/dx क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अभी ये मैं नोट्स भेज देता हूँ, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का डेफिनेशन और उसका साइन का कंडीशन ये यहाँ तक लिख लेना है। फिर व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ये डेफिनेशन है। और उसके बाद अभी हमने डेरिवेशन ये किया हुआ है किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज कैसे बिहेव करेंगे ये हमने डेरिवेशन देख लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितना आ गया टोटली? 1/4πε0 Q1 Q2 by R। अब हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन होगा वो किस बेसिस पे रहेगा? इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है? A एंड B 2 पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं। ये दोनों के दोनों पॉइंट जब हम लेकर आ रहे हैं तो ये किस में लेकर आ रहे हैं? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं।
तो बाद का जो डेफिनेशन है, कल जो हम डिराइव करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे कि ये दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज हम लाते हैं किसके अंदर, एक्सटर्नल, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वो कल हम देखेंगे। तो आज इतना पूरा तुम लोग कंप्लीट करके रखना है। तो आज के लिए इतना डेरिवेशन काफ़ी है।